21st of January 2022. What we have done yesterday, we have defined continuous function, and then we have proved 4 equivalent conditions for continuous function. Suppose f from a contained in x to y, where x and y are the metric spaces, is a continuous function. Then any x in a, if sequence xn is going towards x in a, then f of xn will converge to fx. This should be y. It will converge to y. It will converge to y. Okay, and inverse image of a closed set is a closed set, and inverse image of open set is a open set under f. These 4 conditions are equivalent. So if a function satisfies any one of these 4 conditions, that will be continuous function. That will be called as continuous function. ठीक है? चलिए. There are some exercises. I am leaving it for you. If you feel any problem, then we will discuss it. So throughout these exercises, xt1 and y2 are the 2 metric spaces. Let me read it out, and then you will try to solve it. And if you will feel any problem, then you will ask in the next class. First is proof that constant function is always a continuous. Prove that the identity map is a continuous map. Suppose f from x to y is a map. X is a discrete metric space. Prove that f is continuous map. I am not saying that the metric is discrete metric, but I am saying that this is a discrete metric space. Prove that the composite of 2 continuous function is continuous. Suppose fg are continuous, so that f is equal to those x in x, such that fx is equal to gx is a closed subset of x. Suppose by f we mean either r or c, and suppose f and g are the 2 functions from x to capital F. These are continuous, and take alpha in f, then define a map f plus g alpha f and f into g from x to f as follows. For all x in x, f plus g of x is equal to fx plus gx. Alpha f applied on x is alpha times fx, and fg applied on f dot g on x is equal to fx dot gx. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 फंक्शन जो दिए हुए थे उनकी मदद से ये फंक्शन डिफाइन किया. सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस मैप, scalar multiplication to continuous map, and product of continuous map. And the thing is that prove that these maps from x to f are continuous. ये सारे maps जो हमने नया map define किया, ये सब continuous है, इसको prove कर रहे हैं. Question number 7. With the help of above exercise, so that the single variable real polynomial function is continuous. And suppose xt are metric spaces and x is in f, define a map fx from x to r as fx of y is equal to d of xy. यानी एक हमने पॉइंट फिक्स कर दिया x और y को वेरी कर रहे हैं. Then prove that the map is continuous map. तो इस मैप को हमको continuous मैप दिखाना है. ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं. इस एग्जांपल से इन क्वेश्चंस को करने का तरीका कुछ और आपको क्लियर होगा और आप उसको कर सकते हैं आसानी से. तो एग्जांपल्स ऑफ continuous map. So before the example, let me introduce some more thing. Suppose x, d and y are 2 metric spaces. Then there are several ways to define a metric on x cross y. So अगर x एक metric space है, y एक metric space है, तो हम लोग x cross y पर भी metric define कर सकते हैं, और इस metric को define करने के कई तरीके हैं. For example, हमने d1, d2 and d infinitive हम define करने जा रहे हैं. 3 maps हम define कर रहे हैं जो तीनों metric देंगी x cross y पे. So d1 xy, where ab and xy are elements of x cross y. So d1 ab comma xy is defined as distance between a and x plus distance between b and y. So b and y के बीच की distance नापने का तरीका रो है, और a and x के बीच की distance नापने का तरीका d है. So this is d of ax plus rho of by. Now second thing is d2 ab comma xy. Then d2 is under root of dax square plus rho by square. ये यूजुअली हम लोग करते आए हैं, जो rn के केस में हमने आपको बताया था, ये इसी मैट्रिक को हमने डिफाइन किया था. ठीक है. Then the third one is d infinitive ab xy is dax by.
So this is the exercise for you to prove that d1, d2 and d infinitive are matrices of x cross y. ये तीनों मैट्रिक स्पेस देंगी, तीनों मैट्रिक है ये मैप, इसको प्रूव करिए. With respect to any of this matrix x cross y is called the product metric space. इन तीनों में से किस रेस्पेक्ट में भी x cross y को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस. Now suppose there is a sequence xn in x and there is a sequence yn in y, then such that limit xn is going to x and limit yn is going to y, then try to show that limit n is going towards infinity x and yn is equal to xy. And this is if and only if condition, means if in x cross y there is a sequence x and yn which is converging to the point xy, then xn will converge to x and yn will converge to y. So this is if and only if condition. So try to show it. This is not hard. Okay. Will you try to do it? करेंगे आप लोग इसको कोशिश? ट्राई करेंगे सर. ठीक, हाँ इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. सेकेंड नंबर पॉइंट, recall that Rn is a metric space with respect to metric D. Okay, D is defined as D of xy is equal to under root x minus y dot x minus y. ये यूजुअल मैट्रिक डिफाइन करने का तरीका है Rn के ऊपर, जो आप लोग छोटे से पढ़ते आए हैं. ठीक है, डॉट के मदद से. Where xy belongs to Rn. We know that Rn is a vector space over R. Now plus from Rn cross Rn to R is a map. ठीक है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये मैप जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा. यानी Rn आप पता है Rn एक वेक्टर स्पेस है. इस वेक्टर स्पेस के ऊपर एक डिफाइन होता है, वेक्टर्स का एडिशन. तो वेक्टर का एडिशन करना भी क्या है? मैप क्रॉस आर से आर में ये मैप जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस मैप होती है. ठीक है, ये मैप क्या है? कॉन्टिन्यूअस मैप है. कैसे कॉन्टिन्यूअस? देखिए, ये जो सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस मैप की जो प्रॉपर्टी है उसी की मदद से हम लोग दिखा सकते हैं. कैसे? देखिए, कंसीडर टू सीक्वेंस xn yn contained in Rn such that xn is converging to x and yn is converging to y. Then sequence xn yn is a sequence in Rn cross Rn. ठीक है, Rn cross Rn पे सीक्वेंस मिल गया हमको, और हम क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि मैप प्लस Rn क्रॉस Rn से R में कॉन्टिन्यूअस है. तो Rn क्रॉस Rn में एक सीक्वेंस हम लें, वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है उसमें प्लस लगाने के बाद अगर उसी जगह कन्वर्ज कर रहा है तो मैप कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी. डू यू एग्री एट दिस आर्गुमेंट? प्लीज थिंक ओवर इट. हम लोग ने क्या अभी दिखाया? अभी हम लोग ने देखा कि कॉन्टिन्यूअस मैप की क्या प्रॉपर्टी है. कॉन्टिन्यूअस मैप की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ए से वाई में अगर कोई मैप है उसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, और उस मैप की ये प्रॉपर्टी हो कि अगर कोई सीक्वेंस हम ए में लें और वो किसी पॉइंट एक्स पे कन्वर्ज कर रहा हो, तो एफ लगाने के बाद एफ ऑफ एक्स एन शुड कन्वर्ज टू एफ एक्स. अगर हम ये दिखा दें, ये प्रॉपर्टी कोई मैप सेटिस्फाई कर दे फॉर एनी सीक्वेंस, देन दैट मैप विल बिकम कॉन्टिन्यूअस मैप. So we will use this property to show that this plus is a continuous map. तो कैसे करेंगे? हमारा प्लस मैप कहाँ से कहाँ तक है? प्लस मैप Rn क्रॉस Rn से R में है. हम Rn क्रॉस Rn में एक सीक्वेंस लिए, वो सीक्वेंस क्या लिए? xn yn सीक्वेंस लिए, और हमने कहा कि ये सीक्वेंस xy में कन्वर्ज कर रहा है. तो हम xn yn सीक्वेंस पे ये मैप अप्लाई करेंगे प्लस, और दिखाएंगे कि जो उसकी इमेज आ रही है उससे जो सीक्वेंस बन रहा है वो इस xy पर प्लस लगाने के बाद वहां कन्वर्ज करेगा. तो xn yn पे जब हम प्लस अप्लाई करेंगे तो हमको क्या सीक्वेंस मिलेगा? xn प्लस yn. और xy पे जब हम प्लस मैप अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस y. सो वी नीड टू शो दैट xn प्लस yn विल कन्वर्ज टू x प्लस y. और अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो ये प्लस मैप क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी. क्या यहाँ पे ये आर्गुमेंट क्लियर है आपको? यस सर. ठीक है, कौन सा फंक्शन है? वेक्टर का एडिशन. प्लस क्या है? वेक्टर एडिशन फंक्शन है. तो इस एडिशन फंक्शन को हमको दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, वेक्टर एडिशन भी एक फंक्शन हुआ. Rn क्रॉस Rn में एक मैट्रिक है और R पे एक मैट्रिक है. हमको दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. तो कैसे दिखाएं?
फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए बहुत सारी डिफिनीशन है, उन डिफिनीशंस में से हमने सीक्वेंस वाली डिफिनीशन ली कि अगर सीक्वेंस कोई है और एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है डोमेन में, तो को डोमेन में वो सीक्वेंस की जो इमेज आएगी एफ से, वो इमेज एफ एक्स पे कन्वर्ज करेगी। इस डिफिनीशन को लेकर हम दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमको प्लस को दिखाना है कॉन्टिन्यूअस है, हमने आर एन क्रॉस आर एन में एक सीक्वेंस कंसिडर किया एक्स एन वाई एन, और कहा कि मान लीजिए ये सीक्वेंस एक्स वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। सो वी कंसिडर ए sequence in Rn cross Rn, xn, yn, and we assume that that sequence is converging to the point xy. Okay. Now, what is our aim? Our aim is to show that this map plus is a continuous map. To show that that map plus is a continuous map, what we do? We will determine the image of bracket xn yn with plus, that will be xn plus yn. ठीक है, और xy की इमेज हम निकालेंगे प्लस से, that will be x plus y. And we will show that xn plus yn will converge to x plus y. If anyhow we show this thing, then this map plus will become continuous map. समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। Yes sir. चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स एन वाई एन जो है एक्स वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, और अभी हमने एक आपको लिखा एक्सरसाइज की तरह, आप इसको प्रूव करके देखिएगा कि अगर सीक्वेंस एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है और वाई एन वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्स एन वाई एन एक्स वाई पे कन्वर्ज करेगा, और ये इफ एंड ओनली इफ है। तो एक्स एन वाई एन जब हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई पे कन्वर्ज, एक्स वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब एक्स एन एक्स पे और वाई एन वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, तो चलिए xn जो है कन्वर्ज कर रहा है, yn कन्वर्ज कर रहा है। सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, just n1 n2 that d of xn x is less than epsilon for all n greater than equal to n1, क्योंकि xn x पे कन्वर्ज कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन y and y is less than epsilon for all n greater than equal to n2। ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से आया, इन सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डिफिनीशन से आया। xn is converging to x and yn is converging to y, so given any epsilon greater than 0, there exist two natural numbers n1 and n2 such that distance between x and x is less than epsilon and distance between y and y is less than epsilon। ठीक है, is it okay? अब देखो दो n1 और n2 आए, मतलब दो नेचुरल नंबर आए n1 n2, इन दोनों में से एक बड़ा नेचुरल नंबर ले लें तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो टेक n to be the maximum of n1 and n2, then for all n greater than equal to n we can write for this sequence distance between xn plus yn comma x plus y। इसी को हमको दिखाना है कि ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी आएगी। अगर ये हम दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, xn plus yn will converge to x plus y। ठीक, तो चलिए इसको एस्टिमेट करते हैं। डिस्टेंस between xn plus yn and x plus y can be written as distance between xn plus yn and xn plus y। यहाँ पे y हटा के y कर दिया हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, और फिर हमने xn plus y यहाँ ले लिया और x plus y ऐसे लिया। ठीक है, अब देखो इस डिस्टेंस की डिफिनीशन क्या है। डिस्टेंस की डिफिनीशन है Rn में डिस्टेंस कैसे डिफाइंड है, अभी हमने डिफाइन किया, d of xy is under root x minus y in dot under root x minus y। तो ये डिफिनीशन हम लोग लगा रहे हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन xn plus yn कॉमा xn plus y, इसकी डिफिनीशन क्या हो गई, xn plus yn माइनस xn माइनस y डॉट xn plus yn माइनस xn माइनस y। और फिर दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस बिटवीन xn plus y कॉमा x plus y क्या हो गई, xn plus y माइनस x माइनस y एंड डॉट xn plus y माइनस x माइनस y। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए xn कैंसिल हो जाएगा, दिस xn will get cancel and this xn will get cancel, so what will you get, yn minus y, and यहाँ पे भी yn minus y हुआ, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन yn एंड y। और इसी तरह से इस सेकंड स्टेप को देखेंगे तो इसमें से y कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी y कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, xn और x के बीच की दूरी हो गई। और हमने अभी देखा कि xn और x के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है, और yn एंड y के बीच की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम है, तो ये पूरी डिस्टेंस 2 एप्सिलॉन से कम होगी। सो वी आर डन। यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, और यही प्रूफ करना था हमको। सो इसका मतलब क्या हो गया, xn plus yn converges to
plus continuous. On the same way, you can show the scalar multiplication map in a vector space Rn is also continuous. तो Rn यानी वेक्टर स्पेस जो Rn होता है उसमें दो मैप होती है ना, एक एडिशन की होती है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमने अभी एडिशन दिखाया वैसे ही आप दिखा सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए कंटीन्यूअस मैप. So on a vector space Rn, these two maps, addition and scalar multiplication, both are continuous maps. Is this okay for you or not? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay to everyone? Yes, sir. Yes, sir. क्या गया कि एक सीक्वेंस हो गया हमारे पास xn जो x पे कन्वर्ज कर रहा है, yn सीक्वेंस हो गया y पे कन्वर्ज कर रहा है. By the definition of convergent of sequence given any epsilon greater than there exists n1 n2 in n such that the distance between xn and x will be less than epsilon and distance between yn and y will be less than epsilon for all n greater than equal to n1 xn के लिए and for all n greater than equal to n2 y के लिए. तो इन दोनों n में से बड़ा n हमने ले लिया, n to be the maximum of n1 n2, then for all n greater than equal to n we can write distance between xn plus yn comma x plus y is less than equal to distance between xn plus yn comma xn plus y, triangular inequalities लिख सकते हैं, plus distance between xn plus y comma x plus y. Like this we can write, and by definition this is less than equal to this term. ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, नॉट लेस देन इक्वल टू. इट इज बेटर टू राइट इक्वल हियर. एंड देन इट इज डिस्टेंस बिटवीन yn comma y plus distance between xn comma x, and these two are precisely less than, so remove equal here. These are less than epsilon plus epsilon, so this is 2 epsilon, and this proves that xn plus yn converge to x plus y. And that is what we want to prove. So इसका मतलब क्या हो गया? Plus is a continuous map. तो वेक्टर एडिशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस मैप है. और इसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है Rn के ऊपर वो भी एक कॉन्टिन्यूअस मैप है. तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप लोग शो कीजिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस मैप है. ठीक है, करेंगे इसको. प्लीज ट्राई टू शो इट. आगे चले हम लोग. Yes, sir. Okay. Now third point is suppose XD is a metric space and D जो है वो मैप है x क्रॉस x से R यूनियन 0 में, R प्लस यूनियन 0 में एक कॉन्टिन्यूअस मैप है ये. ठीक है. Suppose that xn and yn are two sequences in x converging to x and y. मान लीजिए xn और yn दो सीक्वेंस है जो x और y पे कन्वर्ज कर रहे हैं. इसका मतलब ये हो गया कि yn जो सीक्वेंस बना वो x y पे कन्वर्ज करेगा. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये मैप कॉन्टिन्यूअस है. ये जो डिस्टेंस वाली मैप है ये भी तो मैप हुई ना, एक x क्रॉस x से R प्लस यूनियन 0 में ये एक मैप है. क्या ये मैप कॉन्टिन्यूअस मैप है? ठीक है ना. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास नोन मैप्स थी पहले उन सब मैप को चेक कर रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है क्या. सो द क्वेश्चन इज डी, ये जो डिस्टेंस वाली मैप है मैट्रिक जो डिफाइंड है एक्स के ऊपर, क्या वो मैप भी कॉन्टिन्यूअस हो जाती है? ठीक है. सो आई टेक टू सीक्वेंसेस xn and y which is converging to x and y respectively. So it means the sequence xn comma yn will converge to xy. And we want to show that D is a continuous map. तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? D of x and y converge to D of x. Is this point is कि क्या दिखाना? x y x और पे कन्वर्ज कर रही है. हमको D को continuous दिखाने के लिए सिर्फ इतना दिखाना है कि D of x and y will converge to D of x y. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ करना एक चीज है, लेकिन ये क्या प्रूफ करना है ये चीज है. तो अगर ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या प्रूफ करना है तब ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए.
So now we will use the definition. Since xn is a sequence which is converging to x, limit n is going towards infinity, xn is equal to x, and yn is a sequence which is converging to y, so limit n is going towards infinity, yn is equal to y. So given any epsilon greater than 0, there exists n1, n2 in n, such that distance between xn and x is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n1, and distance between yn and y is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n2. एग्री कर रहे हो इस बात से? दोनों की डिफिनीशन हमने लगा दी, और इसके बाद हमने एक n ले लिया जो कि मैक्सिमम है n1 n2 में से. एग्री ऑन दिस पॉइंट? हर बार हम ऐसा ही कर रहे हैं. नाउ वी यूज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. Yes, we use triangular inequality. So distance between xn and yn can be written as less than equal to distance between x and x plus distance between xy plus distance between y and y. Agree or not? Yes, sir. Yes, sir. So what does it mean? So distance between x and yn minus distance between xy. इस xy को हमने इस साइड ले लिया. Distance between xy is less than equal to distance between xn, x plus distance between yn, y. ठीक है. तो क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है तो इसका मॉड भी क्या हो गया? इसका मॉड हमने लिया तो इसके मॉड से छोटा हो गया. सो मॉड ऑफ xn प्लस x प्लस yn प्लस y. और मॉड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो अलग अलग कर देंगे मॉड को हम. सो मॉड को अलग कर दे रहे हैं, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों का सम है, इसलिए मॉड लीजिए चाहे नॉर्मल लिखिए, एक ही बात है. बट दीज टू नंबर्स आर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, बोथ आर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. सो mod of dn, mod of d of x and yn minus d of xy is less than epsilon. So equal भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, less than epsilon है ये. This is less than epsilon. What does it mean? So distance between, यही हमको दिखाना था. तो ये एक सीक्वेंस है, d of x and yn एक सीक्वेंस हुआ और ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट n in natural numbers such that for all small n greater than equal to this capital N, mod of distance between x and yn minus distance between xy is less than epsilon. So it means this sequence is converging to this point, hence this map D is continuous map. तो हमने मैट्रिक डिफाइन किया, मैट्रिक की मदद से कॉन्टिन्यूटी डिफाइन की, और कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने के बाद जो मैट्रिक वाली मैप थी वो खुद कॉन्टिन्यूस हो गई. समझ रहे हो इस बात को? जो मैट्रिक स्पेस का मैप थी D वो खुद कॉन्टिन्यूस हो चुकी है. सर ये इक्वल कैसे हट गया? इक्वल हट इसलिए गया क्योंकि इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी. यहाँ पे देखिए डी एक्सन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, एंड डी वाई एन वाई जो है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है. तो यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, ना कि लेस देन इक्वल टू. समझ रहे हो इस चीज को? जी सर. Yes. यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी इक्वल की, एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हटा दिया हमने. चलिए अब देखते हैं एक और मैप की बात करते हैं. एक मैप होती है प्रोजेक्शन मैप. सो कंसीडर ए मैप पाई आई फ्रॉम आर एन आर. ठीक, प्रोजेक्शन क्या होती है? पाई आई का मतलब आयत कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शन. सो अगर हम पाई आई अप्लाई करेंगे, सो इफ वी अप्लाई पाई आई ऑन दिस a1 a2 am, then it is the ith coordinate. So this is equal to ai. This is all the projection on the ith coordinate. ये मैप को तो आप लोग जानते ही होंगे हमेशा. मैप जानते हैं ना? No, sir. नो सर. Have you ever seen this map? प्रोजेक्शन मैप कभी नहीं देखा? नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. इस मैप का नाम है प्रोजेक्शन मैप. ये मैप क्या करती है कि अगर हम पाई आई लगाएंगे यानी पाई 1 लगाएंगे तो जो भी हमारे पास वेक्टर लिखा है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे देगा. पाई 2 लगाएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट दे देगा, और पाई 3 लगाएंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट दे देगा. इसी तरह से अगर हम पाई एम लगाए तो लास्ट कोऑर्डिनेट पाई ए एम दे देगा. ठीक है. सो पाई आई ऑफ a1 a2 am का मतलब इसका आयत कोऑर्डिनेट, वेक्टर का आयत कोऑर्डिनेट क्या है? ai. ठीक है. सो दिस इज अ मैप, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैप. ये मैप कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है. इज दिस मैप इज कॉन्टिन्यूअस? सो द क्वेश्चन इज दिस मैप इज कॉन्टिन्यूअस? सो इसको भी चेक करते हैं क्या ये मैप कॉन्टिन्यूअस है. तो इसको चेक करने के लिए एक सीक्वेंस बनाते हैं. यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे x नहीं है, a कर लीजिए. ठीक है. सीक्वेंस का कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे हैं? a1n अप टू amn.
an क्या है, an अपने आप में एक वेक्टर है और an वेक्टर को हम लिख रहे हैं a1n अप टू amn। तो हमने ये सीक्वेंस कंसीडर किया और हमने कहा मान लीजिए ये सीक्वेंस जो है पॉइंट ए पे कन्वर्ज कर रहा है एंड a इज इक्वल टू a1 a2 am। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमको पता है कि ये अगर n कोऑर्डिनेट का सीक्वेंस है, m कोऑर्डिनेट का सीक्वेंस है और ये किसी पॉइंट m कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है सिंगल सीक्वेंस वो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि a1n विल कन्वर्ज टू a1 एंड सो ऑन, एंड amn जो सीक्वेंस होगा वो am पे कन्वर्ज करेगा। सो हम इन जनरल कह सकते हैं ain जो सीक्वेंस है वो ai पे कन्वर्ज कर रहा है। इज दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव, पाई आई ऑफ an इज इक्वल टू ai। क्या ये कह सकते हैं? देखिए पाई आई अगर हम लगाएंगे an पे, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रहा है? a पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमको क्या दिखाना है? पाई आई लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा, जो सीक्वेंस बनेगा, वो ए के आयत कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ज करना चाहिए। इस पे पाई लगाएंगे तो बराबर आना चाहिए। मतलब हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि पाई आई हमने अप्लाई किया an के ऊपर, क्या बना? ये सीक्वेंस बना और हमको दिखाना है कि दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू पाई आई ऑफ ए। ठीक है, लेकिन पाई आई ऑफ ए है क्या? पाई आई ऑफ ए जो है वो ए आई है, एक आयत कोऑर्डिनेट। और पाई आई ऑफ ए एन क्या है? पाई आई ऑफ ए एन जो है वो ए आई एन है, और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का जो सीक्वेंस है वो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ज करता है। तो ये हमको पहले ही पता है, ए आई एन विल कन्वर्ज टू ए आई। सो ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है यहाँ से कि लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, पाई आई ऑफ ए एन जो है वो ए आई आएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मैप पाई आई इज ए कॉन्टिन्यूअस मैप, और इसको हम लोग बोलते हैं ith प्रोजेक्शन मैप। So the projection map is a continuous map. This is our conclusion. Now tell me if you have any confusion at it. सर एक एग्जांपल, क्या चीज? एक एग्जांपल सर। अच्छा, हम एग्जाम्पल ले लो, R2 ले लो। ठीक है, R2 में, R2 से R में एक प्रोजेक्शन मैप हम डिफाइन करते हैं पाई 1 सपोज करिए। तो पाई 1 क्या हो गई? पाई 1 ऑफ xy इज इक्वल टू x। दिस इज अ प्रोजेक्शन मैप। हम कह रहे हैं ये मैप कॉन्टिन्यूअस होगी। तो अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं तो हमने एक सीक्वेंस लिया an, कहाँ लिया? R2 में। तो ये सीक्वेंस कैसा दिखेगा? इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे a1n एंड a2n। ठीक है, जो चीज ऊपर लिख रहे हैं उसको हम बस आपको ऐसे ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया, और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस किसी पॉइंट ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट है a1 a2, a1 a2 ए का कोऑर्डिनेट है, तो बाय डेफिनेशन a1n विल कन्वर्ज टू a1। दिस इज अ सीक्वेंस इन R, एंड a2n इज आल्सो अ सीक्वेंस इन R व्हिच विल कन्वर्ज टू a2। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन लेने पे भी यही चीज आ रहा है। अगर हम पाई लगाएंगे an के ऊपर, तो पाई ऑफ an क्या आएगा? पाई 1 ऑफ an जो है वो आएगा a1n आएगा, एंड अगर हम पाई ऑफ दिस a1 a2 पे लगाएंगे तो a1 आएगा। तो प्रोजेक्शन मैप के बाद जो आ रहा है, हमको दिखाना है कि a1n विल कन्वर्ज टू a1, which is already true by definition. So this map pi 1 is continuous map. क्या हम जो बोल रहे हैं क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। यस सर। सारे लोग को क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है तो हम फिर से बताएंगे अब। यस सर, बता दीजिए सर फिर से। ओके, हाँ सर।
हाँ सर कोई भी स्केलर मैप प्रोजेक्शन मैप ही होगा ना, जो आर एन से आर तक का होगा, या वो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नलिटी ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट ही करेंगे। देखो, बेसिस हम अगर चुन लेंगे सुटेबली तो वो प्रोजेक्शन मैप की तरह ही दिखेगी, क्योंकि जैसे ही आप वेक्टर स्पेस में बेसिस चुनिएगा, मान लीजिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, आपने बेसिस एक चुन लिया, तो बेसिस चुनने के बाद वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एफएम के, मान लीजिए एम डायमेंशनल का है, और एफएम में के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो बेसिस हम चुन सकते हैं नल्टी को, मतलब जो नल से के एलिमेंट्स को पहले ले लें, उसको एक्सटेंड करके बेसिस चुन लें, ठीक है ना। तो क्या होगा कि कुछ कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, जब भी हम कोई एलिमेंट लेंगे तो शुरू के कोऑर्डिनेट 0 आ गए, 0 0 0, और फिर 0 लास्ट आएंगे। में हाँ बाकी आ जाएगा। तो वो एक्चुअल में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आर पे जाएगा, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में प्रोजेक्शन तो नहीं हुआ, देखो एक्चुअल में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्शन की एक डेफिनेशन है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रोजेक्शन कह सकते हैं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आना चाहिए, इन जनरल प्रोजेक्शन हाँ। की ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो अगर इस और टी कंडीशन ऑफ को W1 सेटिस्फाई प्लस कर, T2 इक्वल्स W1। हाँ, लेकिन जो हम लोग आर एन और आर के केस में कहते हैं यूजुअली कि कोऑर्डिनेट पे प्रोजेक्ट कर देना, यानी कोऑर्डिनेट को दे देने वाला मैप प्रोजेक्शन होती है, ये मैप भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इसमें अगर पाई आई स्क्वायर करोगे तो पाई आई ही आएगा। सो यूजुअली जो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन है वो ये है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी मैप को प्रोजेक्शन मैप बोलते हैं। इसके दो आइगन वेक्टर आएंगे 0 और 1, डायगोनलाइजेबल होती है। प्रोजेक्शन को सर ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, कि अगर मैं कोई बॉडी R3 में रख दूं और उस पे अगर मैं लाइट फॉल करूं तो उसकी जो परछाई होगी वो R2 में जाएगी, तो वो भी तो एक प्रोजेक्शन का हाँ, मतलब अब वो यही भी हुआ ना। प्रोजेक्शन है, वो मैप भी इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, टी स्क्वायर इक्वल टू टी। हाँ, ये लेकिन जो उसमें हम सर प्रोजेक्शन ऐसा डिफाइन किए हैं कि वो आर के ऊपर डिफाइन किए हैं, और वो तुम R2 के ऊपर डिफाइन कर रहे हो। यस, हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसा हो जाएगा सर, A1 A2 A3 में मैप A1 A2 में चले जाएगा खाली। हाँ, वो इस तरह से जाएगा, बिल्कुल ठीक बात, हाँ, यू आर राइट। सो इन जनरल अगर कोई आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको आप प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। बाकी ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बार और बता दें, रुकिए, चलिए हम इसको फिर से देखते हैं। हमारे पास आर एन से आर में एक मैप है, आर एन से आर में एक मैप है, और वो मैप क्या है, पाई आई हम अप्लाई कर रहे हैं अगर किसी एलिमेंट पे A1 A2 AN पे, तो इमेज क्या आ रही है, पाई आई ए आई आ रही है, यानी ith कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ रही है। हमको इस मैप को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो हम क्या किए, हमने आर एन में एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस क्या लिया, AN। सो द सीक्वेंस इज AN जो है एक RN का पॉइंट है, सो इट विल हैव n कोऑर्डिनेट, m कोऑर्डिनेट, सो AM कर देते हैं, AM, और यहाँ पे m कर देते हैं, इट विल हैव m कोऑर्डिनेट। So suppose the coordinates are A1n, A1, A2n or up to AMN. These are the coordinate of this map. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको दिखाना है कि ये मैप प्रोजेक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये सीक्वेंस है, सपोज करो ये सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है, इसी ए पे कन्वर्ज कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ए इज इक्वल टू A1 A2 AM। ठीक, अब क्या होगा, हम इस पे पाई लगाएंगे, हमको पता है कि ये सीक्वेंस अगर इस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का सीक्वेंस है वो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ज करेगा, यानी हमको ये ऑलरेडी पता है कि A1n A1 पे कन्वर्ज करेगा, A2n A2 पे कन्वर्ज करेगा, एंड AMN जो है AM पे कन्वर्ज करेगा। इज इट ओके? यस सर। ओके, सर लेकिन हमको दिखाना क्या है, हमको पाई आई जब हम अप्लाई करेंगे इस AN पर, तो वो AI आना चाहिए लिमिट लेने पे, लेकिन पाई आई जब हम अप्लाई करेंगे AN पे तो क्या मिलेगा हमको, तो यही कोऑर्डिनेट वाला सीक्वेंस मिलेगा, और वो सीक्वेंस ऑलरेडी हमको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट वाले सीक्वेंस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जब भी हम पाई आई लगाएंगे तो हमको ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमको ये पहले से ही पता है ये होता है, ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है।
बट ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि सीक्वेंस अगर ए पे कन्वर्ज करेगा तो कोरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट के सीक्वेंस कोरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ज करेंगे। और पाई आई लगाने पे भी यही आ रहा है, जब इस पे हम पाई आई अप्लाई करेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा। पाई आई ऑफ ए एन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको कोरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का सीक्वेंस मिलेगा। दिस इज द सीक्वेंस एंड व्हाट इज दिस सीक्वेंस, ए आई एन। और हमको ऑलरेडी पता है कि ए आई एन कहाँ जाता है, ए आई पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये मैप क्या हो गई, ये मैप हो गई कॉन्टिन्यूअस। और ए आई है क्या, ए आई जो है पाई ऑफ ए एन, इस सीक्वेंस का आई टर्म पाई ऑफ ए है, ए का आई टर्म। सो दिस इज मतलब बाय डेफिनेशन ये प्रूव्ड है ऑटोमेटिकली। क्या जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोजेक्शन मैप कॉन्टिन्यूअस होती है। चलिए एक छोटा सा ऐसे डिफाइंड है, f ऑफ xy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस x प्लस xy। ठीक है, ये मैप है हमारे पास। अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रोजेक्शन xy का करेंगे तो x आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में प्रोजेक्शन करेंगे तो y आएगा। ठीक है, अब हम f को कैसे लिख सकते हैं, जो f मैप है उसको हम अगर लिखने की कोशिश करें और हम कहें 2 टाइम्स पाई1 स्क्वायर इंटू पाई2 प्लस पाई1 पाई2, तो ये मैप में अगर xy कोऑर्डिनेट डालेंगे तो पूरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। अच्छा, हम करके दिखाते हैं। सपोज करिए हमने ये लिखा और इसमें हम f ऑफ xy की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो 2 टाइम्स हो गया पाई1 स्क्वायर, यहाँ पे डॉट है। देखिए मैप का डॉट क्या होता है, अभी हमने एक्सरसाइज में डिफाइन किया। 2 मैप का डॉट लेने का क्या मतलब है, देखिए मैप का सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट कैसे डिफाइन होता है, f डॉट g ऑफ x का मतलब है fx डॉट gx। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लगाएंगे सो पाई1 स्क्वायर का मतलब पाई1 डॉट पाई1 और उसमें फिर पाई2 से मल्टीप्लाई है, तो xy लगाने का मतलब सब पे xy लगना, पाई1 xy और इसका स्क्वायर पूरे का, और पाई2 पे भी xy अप्लाई होगा और उसका स्क्वायर नहीं, बस उसके बाद पाई1 xy प्लस पाई1 xy एंड पाई2 xy। दिस इज द एक्सप्रेशन। सो आपको पता है पाई1 xy कितना है, पाई1 xy इज x, सो 2x स्क्वायर, एंड पाई2 xy इज y, सो इट इज y, प्लस पाई1 xy इज x, प्लस पाई1 xy इज x, प्लस पाई2 xy इज y। सो आपको वही एक्सप्रेशन आ गया ना, इज इट ओके? तो ये जो पॉलिनोमियल था 2 वेरिएबल का, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो मैप हुई पॉलिनोमियल मैप, दैट मैप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन मैप। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी हुई है, अगर उस एक्सरसाइज को आप लोग करिएगा तो उसमें ये कहा गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैप्स, कॉन्टिन्यूअस मैप जो है वो कॉन्टिन्यूअस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मैप्स का सम और प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई किया गया है। सो सम प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही हो रहा है, और यानी ये सब करने पे जो मैप आएगी वो कॉन्टिन्यूअस आएगी। इसका मतलब ये जो मैप है, ऊपर जो मैप आई x R2 से R में इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है fxy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस xy, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब सम है, डॉट है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस मैप होगा। सो यू मे सिंपली से दैट पॉलिनोमियल मैप ओवर R इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस मैप। एग्री और नॉट? यस सर। तो कितने भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल अगर हम लिखेंगे तो वो पॉलिनोमियल हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस मैप देगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं एक मैट्रिक्स पे। MnR, द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R। तो एक मैट्रिक्स हमने A लिया और उसका ijth कोऑर्डिनेट जो है aij है, यानी मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन हो गया a11 अप टू ann, एंड इसी तरह से an1 अप टू ann।
दिस इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सिग्मा, सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, into product of a sigma I is varying from 1 to n. एग्री कर रहे हो इससे? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेंट मैप। ऐसा हो सकता है कि आपने इस फॉर्मूले को पहले ना देखा हो। देखा है आप लोग ने इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट के लिए? नो सर। बट दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेंट। यस, देखा है किसी ने? यस सर। ठीक। No, sir. और अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर रामजी लाल की बुक में अलजेब्रा 2 चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट एंड फॉर्म्स, ये बुक है और इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखिए। अच्छा चलिए इसको पहले समझा देते हैं, आपको फॉर्मूला ही समझा देते हैं कैसे ये बनता है। मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 M2R की, तो यहाँ पे n कितना हो गया? 2 हो गया। और अगर सिमेट्रिक ग्रुप देखेंगे तो सिमेट्रिक ग्रुप कितने डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री का, क्योंकि जिस साइज की मैट्रिक्स है उतना ही बड़ा सिमेट्रिक ग्रुप लिया गया है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, दिख रहा है आपको? तो हमको सिमेट्रिक ग्रुप क्या लेना है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो S2 लेना है। तो सिमेट्रिक ग्रुप 2 में क्या हो गया? दो सिंबल 1 और 2, तो दो मैप आ गए, एक आइडेंटिटी मैप, एम्प्टी ब्रैकेट का मतलब आइडेंटिटी मैप, और 1 2 हमने लिख दिया, 1 इज गोइंग टू 2 एंड 2 इज गोइंग टू 1। सो दिस इज द सिमेट्रिक ग्रुप। सो SGN क्या होता है? SGN मतलब होता है साइन ऑफ परम्यूटेशन। तो अगर इवन परम्यूटेशन है तो उसका साइन प्लस आता है, और ऑड परम्यूटेशन होता है तो उसका साइन आता है -1। तो साइन ऑफ 1 2 इज एन ऑड परम्यूटेशन, सो इट्स साइन इज -1 एंड आइडेंटिटी का साइन +1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एक्सप्रेशन लिखते हैं। जितना S2 के अंदर एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट्स को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, सम किसके ऊपर है? सिग्मा बिलोंग्स टू Sn के ऊपर है, उसके बाद साइन आया है, उसके बाद प्रोडक्ट आया है। ठीक, तो इसको हम लोग पूरा लिखते हैं। समेशन सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, साइन ऑफ सिग्मा इनटू प्रोडक्ट A sigma I एंड I is varying from 1 to n। तो यहाँ पे दो ही है, I is varying from 1 to 2। ठीक, तो चलिए इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पहला सिग्मा लिया आइडेंटिटी, तो ये हो गया साइन ऑफ आइडेंटिटी। फिर A आइडेंटिटी अप्लाई किया 1 पे, तो और फिर क्या किया? 1 लिख दिया, बाद में एक और I लगा हुआ है, एक I और लिख दिया, यानी 1 लिख दिया। फिर आइडेंटिटी अप्लाई किया 2 पे और फिर 2 लिख दिया। फिर इसके बाद आया साइन ऑफ 1 2, दो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट लिया, सम में दो टर्म आएंगे, दूसरा टर्म है 1 2। 1 2 1 पे अप्लाई किया और फिर 1 2 2 पे अप्लाई किया। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। एम्प्टी सेट का साइन क्या हुआ? +1 हुआ, मतलब आइडेंटिटी का साइन हो गया +1, और आइडेंटिटी को 1 पे अप्लाई किया तो 1 आया, तो 1 1 एलिमेंट हो गया, 2 2 एलिमेंट हो गया, प्लस, और इसका साइन था -1 तो -1 आ गया। 1 2 1 के ऊपर अप्लाई किए तो 1 2 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 एंड +1 2। अब देखो ये वही एक्सप्रेशन आ गया आपका जो डिटर्मिनेंट निकालने का एक्सप्रेशन होता है। सो 1 क्रॉस 4 -3 क्रॉस 2, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। एंड द सेम थिंग यू कैन थिंक ऑफ फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में भी इसी तरह, तो वहां पे S3 अप्लाई होगा, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स। तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स में कितने टर्म आते हैं? 6 टर्म आते हैं। तो अब आपको 6 टर्म के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 2 1 3 2 3, ये सब क्या है? ऑड परम्यूटेशन, इनका साइन आएगा -1, एंड 1 2 3 एंड 1 3 2 इवन परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी जो है इवन परम्यूटेशन, इसका साइन आएगा +1। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सी इट हियर, यहाँ पे 6 सम आएंगे, एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5 6, हर एक Sn के एलिमेंट के लिए एक सम आएगा, और उन सारे एलिमेंट को जो यहाँ पे एलिमेंट यूज किए हैं उसको हम 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 2 एलिमेंट आया, 1 2 को 1 के ऊपर, 1 2 को 2 के ऊपर, 1 2 को 3 के ऊपर, एंड सो ऑन, ये सारा करेंगे। और फिर इसको सॉल्व करके हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो आप लोग यूजुअल डिटर्मिनेंट निकालने में यूज करते हैं। ठीक है,
सो इन जनरल अगर हमारे पास n क्रॉस r की मैट्रिक्स है और रियल फील्ड के ऊपर है और a हमारा ये है, तो a को हम लोग लिख सकते हैं ये डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है ना? ये आगे चले हम, या इसमें कहीं कुछ पूछना है? इज दिस एक्सप्रेशन इज ओके टू ऑल ऑफ यू? A1 ये A2 लिख रहे हैं वो समझ नहीं आया। फिर से बोलो एक बार पुनीत। जो सर A1 1 2 A1 करके ऐसे है वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, ये जो है 1 2 एक मैप है ना? 1 2 मैप को अगर हम 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 2 देगी। 1 2 एक मैप है जो 1 को 2 पे और 2 को 1 पे भेजती है। तो 1 2 मैप को अगर हम 2 पे अप्लाई करेंगे तो ये 1 देगी। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है सिग्मा आई है, यानी ये जो आई है उसके ऊपर हम लोग सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू 1 2 2 लिया तो सिग्मा 1 1 आ गया और सिग्मा 2 2 आ गया। देखो सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 सब में वही है। तो सिग्मा यहाँ पे 1 2 था तो 1 2 1 1 एंड 1 2 2 2, ठीक है? तो हमने इसका अप्लाई करके मैप पे वैल्यू लिख दी। तो 1 2 को जब 1 पे अप्लाई किया तो 2 आ गया, तो 2 1 हो गया, और 1 2 को जब 2 पे अप्लाई किया तो 1 आया और 1 2 हो गया। और फिर इसकी सारी वैल्यू रखी, देन यू विल गेट द डिटरमिनेंट। और इसी तरह से 3 क्रॉस 3 के ऊपर भी हम करेंगे। ठीक है? तो ये जो डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन है, ये यूजुअल डिटरमिनेंट का जो एक्सप्रेशन है वही आता है जो आप लोग जैसे निकालते हैं। अगर पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो वही चीज आएगी। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द डिटरमिनेंट। नाउ सी MNR जो है वो n क्रॉस n मैट्रिसेस है रियल के ऊपर, रियल नंबर फील्ड के ऊपर। तो हमने कोई अगर मैट्रिक्स A ले लें तो उसमें आप देख रहे हैं कि टोटल n स्क्वायर कोऑर्डिनेट अंदर आएंगे, n स्क्वायर एंट्रीज आएंगी। अगर रो वाइज इनको हम अगर बगल बगल करके लिख दें, मतलब साइड बाय साइड लिख दें, तो पहली रो हो गई, फिर दूसरी रो लिख दें, फिर तीसरी रो और फिर nth रो लिख दें, then you can see that it is nothing but an expression in Rn square। ठीक है? ये क्या होगा? Rn स्क्वायर का एक एलिमेंट बन जाएगा। ये बात क्लियर? yes एक मैट्रिक्स को हम एक वेक्टर की तरह देख सकते हैं, Rn स्क्वायर के एक एलिमेंट की तरह देख सकते हैं एक मैट्रिक्स को। और इस मैट्रिक्स में और Rn स्क्वायर में एक बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, है ना? हर वेक्टर को हम n स्क्वायर कोऑर्डिनेट है तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले n को पहली रो में, दूसरे n कोऑर्डिनेट को दूसरी रो में, और इस तरह से लास्ट n कोऑर्डिनेट को लास्ट रो में लिखेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप। सो MNR, क्योंकि Rn स्क्वायर क्या है? Rn स्क्वायर एक मैट्रिक स्पेस है, तो हम कह सकते हैं MNR और Rn स्क्वायर में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है, बाइजेक्शन है। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो MNR is a metric space and the distance between the two matrices are the distance between their corresponding elements in Rn square। तो दो मैट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस का क्या मतलब निकालेंगे? जो उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर बन रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोल देंगे मैट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? Rn स्क्वायर और MNR दोनों बाइजेक्टिव सेट हैं, दोनों सेट के बीच में बाइजेक्शन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस MNR में वही होगी जो Rn स्क्वायर में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? टेल मी यस और नो। अभी तो आपका क्लास नहीं होगा 1 से 2। यस no sir तो थोड़ा सा समय और ले लेते हैं और इस चीज को पूरा कर देते हैं। नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब एक मैप डिफाइन कीजिए, प्रोजेक्शन मैप पाई आई जे। वो क्या करेगी? पाई आई जे किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम लगाएंगे तो उसका ijth कोऑर्डिनेट दे देगी, ijth एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स दे देगी। सो पाई आई जे को अगर हम Rn स्क्वायर में देखेंगे तो ये एक तरह की एक प्रोजेक्शन मैप हो गई। ठीक है ना? Rn स्क्वायर में n स्क्वायर कोऑर्डिनेट है और उसमें एक कोऑर्डिनेट दे दिया इसने, तो ये क्या हो गई? प्रोजेक्शन मैप हो गई। So determinant map from MNR to R is defined as determinant of A is equal to summation sigma belongs to Sn sin sigma product I is varying from 1 to n A sigma I I।
और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सिग्मा आई आई ए, बिकॉज ए सिग्मा आई आई का क्या मतलब हो गया, सिग्मा आई आईएथ कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और प्रोजेक्शन लगा देंगे अगर हम, प्रोजेक्शन सिग्मा आई आई ए के ऊपर लगाएंगे तो इसका ए सिग्मा आई आईएथ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट एक मैप हो गई जो कि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगी, और उसका एक्सप्रेशन ये हो गया, एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड सम ऑफ प्रोजेक्शन मैप्स। एंड तुम्हें पता है कि प्रोजेक्शन मैप क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस मैप होती है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस मैप होगी। सो डिटर्मिनेंट फ्रॉम एम एन आर टू आर इज ए कॉन्टिन्यूअस मैप। बात समझ में आ गई? डिटर्मिनेंट क्या है, एम एन आर से आर में कॉन्टिन्यूअस मैप है। इज इट ओके? यस सर। तो ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आप लोग इसको और समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम इस